Hello everyone, I'm here once again with another topic, another theorem. Today's theorem is midpoint theorem, and this is very important for class 9 and 10 for almost all the boards student. Okay now? So let's see what the midpoint theorem is. According to midpoint theorem, any line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and each half of it. Okay, let's see. Let us draw first. Suppose there is one triangle ABC. A, B, C, and here given that D and E are the midpoints of side AB and AC respectively. That means D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. So according to midpoint theorem, line segment joining the midpoint, that is DE, is parallel to third side, that is BC, and is also half of it. Okay, I think it's clear now, right? Okay, so I'm erasing this. Let us start with given. So here given what is given? Triangle ABC, triangle ABC in which D is the midpoint of side AB and E is the midpoint of side AC. Okay, D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC. Okay, to prove we need to prove here. First, DE is equal to D is parallel to BC. Secondly, DE is equal to half of BC. ओके ना, ठीक है. DE फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि DE BC के थर्ड साइड के पैरेलल है एंड आल्सो DE इज हाफ ऑफ BC. ठीक है. ओके, सो जस्ट टू प्रूव दिस हियर वी नीड टू कंस्ट्रक्ट. यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन रचना की जरूरत है. तो रचना हम यहाँ क्या करते हैं, देख लो यहाँ पर DE को एक्सटेंड कर देते हैं F तक, सच दैट DE इक्वल्स टू EF एंड ज्वाइन कर देते हैं F को C से. सो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइड DE इज एक्सटेंडेड, या प्रोड्यूस भी लिख सकते हो आप, एक्सटेंडेड to F and FC are joined. Okay ना, ठीक है. Okay, such that DE equals to EF. DE equals to EF. ओके, अब हमें देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो ट्रायंगल यू कैन सी है ना, टू ट्रायंगल्स, राइट, two triangles are there. These triangles can easily be seen, right? One triangle is triangle ADE and another is CEF. Okay na? So actually we need to prove these two triangles as
कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना आसान? तो हम लोग इस ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, राइट? मैं आप पॉज करके प्लीज उसको देखना, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, आई एम रियली सॉरी। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लेना पॉज करके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो नाउ वी विल बी टेकिंग नाउ in triangle proof. Now we need to give the proof. Okay na? Proof in triangle. Which triangle we will be taking? ADE, triangle ADE, and triangle which one? CEF. Okay, now देखो तो इसमें क्या क्या इक्वल है, कौन कौन कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल करता है, राइट? इसको बहुत गौर से अगर आप देखते हो तो सबसे पहले एक तो आपको दिख जाएगा, जस्ट रिकॉल कि E is the midpoint, isn't it? E is the midpoint of AC, that means this side equals to this side, है ना? दोनों ट्रायंगल में एक तो मिल गया ना, AE here, AE equals to EC, right? रीजन क्या दोगे? यस, वेरी गुड, E is the midpoint. E is the midpoint. Okay na? Okay, one got. Another one, just see, this is vertically opposite triangle. Yes, है ना? Okay, very good. Angle AED equals to angle CEF, isn't it? What region you write? Vertically opposite angle. Okay, one more conditions we need, right? चलो देखते हैं क्या हो सकता है, आप लोग इसको सजेस्ट करो तो। Yes, DE equals to EF. DE equals to EF from construction, right? From construction, isn't it? Okay, therefore these two triangle ADE is congruent to triangle CEF. Okay, we have proved this by कौन सा होगा कंडीशन? सो देख लो, दो साइड है, वन एंगल है, दैट मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, राइट? ओके, दैट मीन्स अगर आप जानते हो ना वन फैक्ट कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके एवरी पार्ट्स आर इक्वल, इजंट इट? देयरफॉर आप ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि AD जो होगा FC के इक्वल होगा ना? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? बाइसेप्लिसिटी, यस। देयरफॉर साइड AD इक्वल्स टू साइड FC या CF, आप बोल दो CF, राइट? बाय CPCT, isn't it? Corresponding part of congruent triangle. But you know, एक चीज जानते हो ना, AD इक्वल्स टू, ये हमने प्रूव कर दिया दिस इक्वल्स टू दिस, और AD इक्वल्स टू DB है ना, बट AD इक्वल्स टू DB, देखो यार, AD इक्वल्स टू CF है एंड AD इक्वल्स टू DB है, दैट मींस CF इक्वल्स टू DB हो जाएगा, राइट? DB इक्वल्स टू CF हो जाएगा, इजंट? हो जाएगा ना भाई? यस, DB इक्वल्स टू CF। चलो कुछ याद आ रहा है? देखो भाई, हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, ओके ना? अब हमें प्रूव कर देना है कि ये पैरेलल भी है। चलो देखते हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए पैरेलल है या नहीं है। तो एक चीज जानना होना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, बाइसेप्लिसिटी, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इजंट इट? ओके, देयरफॉर क्या करेंगे नाउ, या अगेन कर दो आप, अगेन। ओके,
ये एंगल, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, DA या बोलो BAC या BAE बोलो, जो बोलो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो हम लोग बोल देते हैं DAE, ओके, या BAE, चलो तुम्हारा सही, BAC लिख देते, राइट है ना, कुछ भी लिख देते यार। तो ये एंगल दिखाना है तो यहां से शुरू करिए या यहां से शुरू करो, है ना। D एंगल DAE equals to angle ECF, एंगल ECF क्या रीजन दोगे भाई, बाय CPCT, isn't it? But they are alternate angle, ध्यान दो तो ये अल्टरनेट है, ध्यान दे रहे हो, ये देखो यहाँ पैरेलल हो जाएगा ना, यस, बट दे आर लिख देना, बट दे आर अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर क्या हो गया भाई, ये वाला जो है इसके पैरेलल भी हो गया, दैट मीन्स, चलो ऊपर में लिख दो, आप पॉज करके देखना प्लीज। But they are alternate angle, and alternate angle, that means those two lines are parallel, isn't it? That means therefore ये वाला लाइन AB is parallel to ये वाला लाइन FC, right? अब देखो भाई, AB is parallel to FC, that means ये जो है आपका DB is parallel to FC हो जाएगा ना, therefore DB is parallel to FC, therefore this is a parallelogram, हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना, देखो opposite sides are equal and opposites are parallel, that means therefore DBCF, therefore DBCF is a पैरेललोग्राम, ये समानांतर चतुर्भुज बन गया, इतने। और समानांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, अब बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट मींस देयरफॉर ये वाला देखो DF इज पैरेलल टू BC हो जाएगा ना भाई, एंड जब DF पैरेलल है तो D तो पैरेलल होगा ना, therefore DE is parallel to BC, फर्स्ट पार्ट क्या, हाँ बोलो, यस, प्रूव्ड, यस। अब सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं, सेकेंड पार्ट कैसे बड़ा प्रूव करते हैं, राइट। सेकेंड वाला पार्ट को प्रूव करना है ना, इसका हाफ है BC का, राइट। तो अब देखो भाई, अगर हम पैरेलल है, ये पैरेलल तो हम प्रूव किया, तो ये इक्वल भी तो होता है ना अपोजिट साइड से, देखो ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से इक्वल है, तो दैट मींस आल्सो आप क्या रीजन दोगे यहाँ पर, DF इज इक्वल टू BC, वाई रीजन बोलो, अरे बोलो यार, हाँ यस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, हाँ रे यार, वेरी गुड, you all people are catching very fastly, I'm very proud of you, okay। now half of DF, दोनों साइड को हाफ से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, एंड हाफ ऑफ DF क्या होगा, DE, therefore DE equals to D is half of BC, hence second part also proved. So hope you understand this. अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप इसको बार बार देखो, and after that also if you are facing any sort of problem then please feel free to ask me in comment section, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में है तो फॉलो कर लीजिए। वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन बाय बाय।
Take care.